آپ سب کو دیکھنے اور سننے والوں کو آج کا دن ایک بڑی فتح کا دن، خداوند یسوع مسیح کا یروشلم میں شاہانہ داخلہ، جس کو آپ کھجوروں کے اتوار سے جانتے اور مخاطب کرتے ہیں، آپ سب کو اس کی بہت بہت خوشیاں مبارک ہوں اور خداوند آپ کو برکت دے۔ آج کلام مقدس میں سے جس ورد کا انتخاب کیا گیا ہے حسب معمول موقع کی مناسبت سے، مقدس متی رسول کی معرفت لکھا جانے والا خداوند یسوع مسیح کا انجیلی بیان، اس کا 21واں باب اور اس کی پہلی 11 آیات کا ہم مطالعہ کریں گے۔ مقدس متی رسول کی معرفت لکھا جانے والا خداوند یسوع مسیح کا انجیلی بیان، اس کا 21واں باب پہلی آیت سے کچھ اس طرح مرقوم ہے۔ اور جب وہ یروشلم کے نزدیک پہنچے اور زیتون کے پہاڑ پر بیت فگے کے پاس آئے تو یسوع نے 2 شاگردوں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ، وہاں پہنچتے ہی ایک گدھی بندھی ہوئی اور اس کے ساتھ بچہ پاؤ گے، انہیں کھول کر میرے پاس لے آؤ، اور اگر کوئی تم سے کچھ کہے تو کہنا کہ خداوند کو ان کی ضرورت ہے، وہ فی الفور انہیں بھیج دے گا۔ یہ اس لیے ہوا کہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ سیون کی بیٹی سے کہو کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے، بلکہ لادو کے بچے پر۔ پس شاگردوں نے جا کر جیسا یسوع نے ان کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا، اور گدھی اور بچے کو لا کر اپنے کپڑے ان پر ڈالے اور وہ ان پر بیٹھ گیا۔ اور بھیڑ میں سے اکثر لوگوں نے اپنے کپڑے راستہ میں بچھائے اور اوروں نے درختوں سے ڈالیاں کاٹ کر راہ میں پھیلائیں، اور بھیڑ جو اس کے آگے آگے جاتی اور پیچھے پیچھے چلی آتی تھی پکار پکار کر کہتی تھی، ابن داؤد کو ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے، عالم بالا پر ہوشنا۔ اور جب وہ یروشلم میں داخل ہوا تو سارے شہر میں ہلچل پڑ گئی اور لوگ کہنے لگے یہ کون ہے؟ بھیڑ کے لوگوں نے کہا یہ گلیل کے ناصرت کا نبی یسوع ہے۔ خداوند اس کلام کے سبب سے مجھے اور آپ سب کو بڑی برکتوں سے نوازے۔ آئیے دعا کریں۔ قدوسیت کے مالک ابراہیم، اسحاق، یعقوب کے خداوند مسیح یسوع میں ہمارے باپ، تو ہی عزت، بزرگی، حمد و ستائش کے لائق خداوند ہے۔ اے خداوند، معبودوں میں کون ہے جو اپنے تقدس کے بس جلالی اور اپنی مدح کے سبب سے روب والا اور صاحب کرامات ہے؟ اے خداوند یسوع مسیح کے خون کی بنیاد میں تیرے قدموں میں ہوں اور اپنی کمزوریوں کے اقرار کے ساتھ اے خداوند تجھے سجدہ کرتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں کہ تو اے خداوند میری کمزوریوں کو اپنے زور میں بدل دے اور اپنے لوگوں سے ہم کلام ہو۔ اے خداوند تو ہماری حیثیت، ہماری ذمہ داری، اور اے خداوند اس دنیا میں اے خداوند جو کام تو نے ہمیں سونپا ہے اس کے مطابق اے خداوند ہم سے ہم کلام ہو، تاکہ اے خداوند ہم اپنی زندگیوں کے لیے اے خداوند آج کے کلام سے تقویت حاصل کر سکیں اور اے خداوند تیری مرضی کو جان سکیں۔ مسیح یسوع کی خاطر یہ چاہتا ہوں، آمین۔ خداوند یسوع مسیح بہت دفعہ یروشلم میں آ چکے تھے۔ اپنی 33 سالہ زندگی میں انہوں نے بے شمار عید فصح جو تھیں وہ انہوں نے یروشلم میں منائی تھی، کیونکہ عید فصح خاص طور پر جو ہے وہ یروشلم میں منانے کا حکم تھا۔ یہ کوئی نیا کام نہیں تھا، نئی بار نہیں تھی، پہلی بار نہیں تھا کہ وہ یروشلم میں داخل ہو رہا ہے، لیکن یہ داخل ہونا دوسرے داخلوں سے بالکل الگ ہے۔ یہ داخل ہونا دوسرے تمام کیفیتوں سے الگ ہے، کیونکہ اس داخلے کے لیے خداوند نے 2 ہفتے پہلے تیاری کی اور یہ ہفتہ انہوں نے یروشلم کے اندر گزارنا تھا۔
पूरा हफ्ता उन्होंने यरूशलेम के अंदर तालीमो तरबियत पर गुजारना था। अगर आपको मौका मिले तो इससे बाद जब वो यरूशलेम में दाखिल हो गया तो इसके बाद आप चंद एक हवाला जात को पढ़ें और देखें कि खुदावंद ने इस जगह से लेकर मसलूबियत तक क्या क्या अंजाम दिया, तो आप उस तरतीब को देखकर हैरान रह जाएंगे कि किस तरह से खुदावंद ने इस सारे प्रोग्राम को जो है तश्कील दिया। वो जानता था वो क्या करने वाला है और वो जानता था क्या होने वाला है, इसलिए उसने अपने दौराने यरूशलेम की तरफ सफर में 3 बार अपने शागिर्दों को ये बात अलग ले जाकर बताई कि वो याद रखें कि क्या होने वाला है। वो एकदम डर ना जाए, वो एकदम घबरा ना जाए, वो एकदम परेशान ना हो, वो एकदम जो है वो दूसरों के लिए नुकसानदेह साबित ना हो जाए जब एकदम उन पर मुसीबत आए। तो उन्होंने 3 बार उनको कहा हम यरूशलेम को जा रहे हैं। ये कोई हादसा नहीं है कि खुदावंद ने कहीं जा रहे थे और इरादा कर लिया यरूशलेम को जाएंगे, बल्कि ये एक प्रोग्राम के तहत काम हो रहा है। कोई ताकत काम कर रही है जो उन चीजों को पूरा करने की तरफ लेके जा रही है सबको। खुदावंद ने 3 बार कहा हम यरूशलेम को जा रहे हैं और वहां पर क्या होगा ये भी बताया। और उन्होंने कहा लोग मुझे पकड़ेंगे और आला हुकाम के हवाले करेंगे, वो मुझे मसलूब करेंगे और मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। शागिर्द इन बातों को जानते थे। ये मसीह, ये यीशु मसीह, ये खुदावंद यीशु मसीह वो खुदावंद यीशु मसीह नहीं है जिसको शैतान कह रहा है कि मैं तुझे ये कहता हूं कि अगर तू खुदा का बेटा है, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा ये पत्थर रोटियां बन जाएं। आज का यीशु, शहाना दाखले का यीशु बरमला कह रहा है अगर ये चुप रहे तो पत्थर चला उठेंगे। जब लोग उसके पीछे नारे लगा रहे थे तो फकीह और फरीसियों ने आकर उसे कहा अपने शागिर्दों को मना कर। तो खुदावंद ने कहा आज अगर ये चुप रहे तो पत्थर चला उठेंगे। आज उसके अंदर की उलूहियत बात कर रही है, आज उसके अंदर की खुदायत जो है वो बात कर रही है। इसलिए पौलुस रसूल उसके बातन को जो है हमारे सामने रखते हुए कहते हैं कुलसियों के नाम लिखा जाने वाला खत उसका 2 बाब नामी है, क्योंकि अलूहियत की सारी मामूरी उसी में मुजस्सम होकर सुकूनत करती है। और मत्ती की इंजील 3 बाब की 9वीं आयत में खुदावंद इस्राएल से कहते हैं अपने दिलों में ये कहकर जो है ख्याल ना बांधो कि तुम इब्राहिम की औलाद हो। अगर खुदा चाहता तो इब्राहिम के लिए इन पत्थरों में से भी औलाद पैदा कर सकता है। ये उसकी उलूहियत थी, ये उसका बरमला तौर पर जो है निशान देना था कि मैं आ गया हूं। और ये निशान 3 लोगों के लिए था, 3 शख्सियात के लिए ये निशान था। नंबर 1 ये निशान था सयून की बेटी के लिए। सयून वो शहर है, वो इलाका है यरूशलेम के अंदर जिसको एक किला नुमा इलाका बना के यबूस के लोगों ने उसको बंद कर रखा था और इस्राएल और यहूदा उसे फतह नहीं कर पाए थे। और दाऊद के साथ बड़ी देर तक
उनकी जो है लड़ाई रही, लेकिन एक वक्त में दाऊद ने उसको फतह जब कर लिया तो ये शहर, ये इलाका, ये जगह दाऊद के शहर के नाम से कहलाने लगी और इसी का नाम जो है वो सयून रखा गया है। और अगर आप जकरिया की किताब पढ़ें तो जकरिया के अंदर जो है वो एक और शख्सियत को जो है ये निशान के तौर पर पैगाम दिया जा रहा है, वो है दुख्तरे यरूशलेम, सयून की बेटी, दुख्तरे यरूशलेम मतलब जगह और उसके अंदर रहने वाले लोगों को ये निशान दिया जा रहा है। और तीसरा ये निशान बैनुल अक़वामी निशान है, सारी दुनिया के लिए ये निशान है कि खुदावंद सुलह का पैगंबर होकर आ रहा है। अगर आज उसको सुलह को कबूल ना किया गया, क्योंकि पहले वक्तों में जब कोई पैगाम रसा भेजा जाता था दूसरे मुल्कों के अंदर, दूसरी अफवाज के अंदर, बाइबल के अंदर बेशुमार इसकी शहादतें मौजूद हैं, तो उस सुलह के पैगंबर को अगर कबूल किया जाता था, उसकी इज्जत अफजाई की जाती थी, तो सुलह नामे पर जो है बादशाह की मोहर हो जाती थी। लेकिन अगर उस सुलह के पैगंबर को रुसवा किया जाता, उसको बेइज्जत किया जाता, उसको मार दिया जाता, उसके उज़्व काट दिए जाते, उसको जो है रुसवाई के तौर पर जो है वापस भेजा जाता, तो जंग तय थी। और इस पैगंबर को जब उसने दुनिया के साथ सुलह का पैगाम जो है वो पहुंचाया कि मैं सुलह चाहता हूं, मैं रहम पसंद हूं, मैं जुल्म के खिलाफ हूं, अगर तुम मेरी अतायत में आते हो तो मैं तुम्हारे साथ सुलह जोई के साथ पेश आऊंगा। लेकिन उन्होंने उसको नामंजूर किया। मत्ती की अंजील में बड़ी खूबसूरत एक तमसील खुदावंद देते हैं और कहते हैं, एक आदमी था जो बादशाही पाने के लिए परदेश गया और उसने अपने 10 नौकरों को जो है वो कुछ अशरफियां दी, और जब वो बादशाही लेने के लिए चला गया तो उन लोगों ने उसके पीछे पैगाम भेजा, जिसने उसको बादशाह बनाना था उसको पैगाम दिया, इसे बादशाह ना बनाना, हम इसकी बादशाही नहीं चाहते। वो बादशाह लेकर वापस आया और इक्तदार संभालते ही उसने कहा, उन लोगों को मेरे सामने लाओ जिन्होंने मेरी बादशाही का इनकार किया था। यीशु मसीह बादशाही लेने चला गया है, अब वो बादशाही लेकर आएगा। जितने लोग इनकार कर रहे हैं वो उनको अदालत में खड़ा करेगा, और जितने लोग उसकी पैरवी कर रहे हैं वो उनको अपने साथ तख्त पर बिठाएगा। इस खजूरों के एतवार की जो जड़ें हैं, इसकी जो बुनियादें हैं, वो अहबार की किताब के खैमा की ईद के अंदर है, ईद क़याम के अंदर है। ये ईद जो है बनी इसराइल के परदेसी होने को जाहिर करती है। अहबार की किताब उसका 23वां बाब 40वीं है। यहां पर कोई बंदिश नहीं, आप खजूर की डाली ले आए, आप किसी भी दरख्त की डाली ले आए, आप कोई से भी फ्रूट वाले दरख्त की डाली ला सकते हैं, आप घने दरख्तों की डाली ला सकते हैं, और आप उनसे खेमा बनाएं और उसमें रहें और यादगारी करें कि जब आप मिस्र से निकले थे तो मैंने तुम्हें बियाबान में
पाला पोसा था, मैंने तुम्हारी हिफाजत की थी, मैंने तुम्हें मौसमी असरात से बचाया था, मैंने तुम्हें आस पड़ोस की कौमों से बचाया था, मैंने तुम्हें बीमारियों से बचाया था, और उसकी याद में तुम खैमों में रहो। और खास जो ये डालियां हैं किसी भी दरख्त की, वो खास इंसानी नुमाइंदगी को जाहिर करती हैं। हाथ लहराना और डाली हिलाना एक ही बात है। डाली जरा बुलंदी तक पहुंच जाती है, आपकी निशानदेही करती है, और अगर आज आप इसको खुशहाली की तरफ इसका जो है एक पहलू देखें तो ये ग्रीन संडे है, एक ऐसा इतवार जिसके अंदर हर तरफ उम्मीद ही उम्मीद है, ईमान ही ईमान है, और खुशहाली है, और खुदावंद की कुर्बत की चाह है। और हमने हमेशा इस एतवार को एक खास हद के अंदर रहकर सीखा है, एक खास हद के अंदर रहकर देखा है। मैं आज आपके साथ उन लोगों को शेयर करना चाहता हूं, उन लोगों को बयान करना चाहता हूं जो किसी ना किसी तासीर के नीचे काम कर रहे थे। मैं आपको उन तासीरात से जो है आगाह करना चाहता हूं। 3 लोग, 3 शख्सियात यहां पर काम कर रही थी। इस जुलूस को प्रोग्राम करने वाली शख्सियत जो है वो खुदा है। खुदा काम कर रहा था। खुदा कहता है मैं अपने सुखन की पैरवी करता हूं, मैं अपने वादे पर कायम रहता हूं। और कलाम कहता है वो सादिकुल कौल है, वो अपने वादों से मुकरता नहीं। खुदा में जरा भी जो है वो बदी नहीं, वो जो कहता है उसको वो आपके लिए राज कर देता है। इसलिए मत्ती की इंजील 21वां बाब उसकी 4 और 5वीं आयत में लिखा है, इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि ऐ सयून की बेटी से कहो कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर। और फिर जकरिया की किताब में वो कहता है कि सयून की बेटी को खुशखबरी दो कि मैंने जो उसके लिए कहा है उसके ठहराए हुए वक्त पर मैं उसको पूरा कर दूंगा। और उसने उसको तरतीब ही नहीं दिया बल्कि पूरा किया और कहा, आए बिन्नते सयून तू नहायत शादमान हो, आए दुख्तरे यरूशलेम तू खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो सादिक है और नजात उसके हाथ में है, वो हलीम है और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार है। क्यों ऐसा हुआ? क्यों खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में मुजस्सम होकर आया? क्योंकि वो बाप का सुखन पूरा करने वाला था, वो बाप का कलाम पूरा करने वाला था। इसलिए यिर्मयाह को खुदावंद कहते हैं, यिर्मयाह तू क्या देखता है? यिर्मयाह कहने लगा, खुदावंद मैं एक बादाम की शाख देखता हूं। तो खुदावंद ने कहा, तूने खूब देखा। क्यों? इसलिए यिर्मयाह की किताब उसका पहला बाब 12वीं आयत में खुदावंद लिखते हैं, और खुदावंद ने मुझे फरमाया कि तूने खूब देखा, क्योंकि मैं अपने कलाम को पूरा करने के लिए बेदार रहता हूं। मुझे पता है मैंने क्या कहा हुआ है, मुझे पता है कि मैंने उसको किस औकात के अंदर जो है अंजाम देना है। और आज
इस ग्रीन संडे पर, आज इस खजूरों के एतवार पर खुदा एक और काम जो है उसको तरतीब दे रहा है। उसने एक और सुखन को पूरा करने के लिए जो है वो इस काम को शुरू किया है, ताकि हम इस जुलूस में अपना मकाम पहचान जाएं। झोंक दर झोंक लोग उसके साथ मिलते जा रहे थे। उसने किसी के मफलूज भाई को, शोहर को, बाप को और रिश्ते में कुछ भी उसने उसको तंदुरुस्त किया था। लोग सुनते जा रहे थे और मिलते जा रहे थे। कोई अगर उसके खानदान में मुआवजा नहीं हुआ तो वो गवाही सुन रहा है, इसने जो आगे जा रहा है, इसने फलां के बेटे को जिंदा कर दिया। जब उसके पास कोई सहारा नहीं था, इसने उस बेवा के बेटे को जिंदा करके उसे सौंप दिया। ये कुछ करेगा, ये हमें आजादी दिलाएगा, ये हमें रिहाई देगा। इसलिए उसके आगे और पीछे नारा गूंज रहा है, होशाना, क्योंकि खुदा काम कर रहा है। और यशाया की किताब में अगर खुदा काम कर रहा है तो वो लोग समझे क्यों नहीं? उन लोगों ने परखा क्यों नहीं? उन लोगों ने देखा क्यों नहीं? ये भी उसका सुखन है। खुदा यशाया को कहते हैं, मेरी तरफ से कौन जाएगा? मैं किसको भेजूं? यशाया कहते हैं, मुझे भेज। उसने फरमाया, जा और जाकर इन लोगों से कह कि तुम सुना करो पर समझो नहीं, तुम देखो पर उस पर गौर नहीं करो, बूझो नहीं और इनके दिलों को चरबा दे। आइए कलाम मुकद्दस में से पढ़ते हैं। यशाया की किताब उसका 6वां बाब 9वीं और 10वीं है। और उसने फरमाया, जा और उन लोगों से कह कि तुम सुना करो पर समझो नहीं, तुम देखा करो पर बूझो नहीं। तू इन लोगों के दिलों को चरबा दे और उनके कानों को भारी कर और उनकी आंखें बंद कर दे, ताना हो कि वो अपनी आंखों से देखें और अपने कानों से सुने और अपने दिल से समझ लें और बाज आए और शिफा पाए। खुदा ने उस नस्ल को रद्द कर दिया हुआ है। खुदा ने उस पुष्ट को छोड़ दिया हुआ है ताकि अपने सुखन को पूरा करे जो उसने उनके बारे में कह दिया है। और आज इसके हमारे ऊपर क्या असरात हैं? क्या आज हम वो लोग हैं जिनके लिए कहा हुआ कलाम पूरा हो रहा है, या मस्बत है या मनफी है? हम कौन हैं? हमारा नारा होशना हो सकता है, लेकिन क्या बरसरे इक्तदार आने के लिए हम लोगों को होशना नारा लगाकर दिखाते हैं, या हम अपने आप को उसके माताहत करने के लिए ये नारा लगा रहे हैं? इसलिए करंथस की कलीसिया को पौलुस रसूल कहते हैं, 2 बाब 8वीं और 9वीं आयत, जैसे इस जहान के सरदारों में से किसी ने ना समझा, क्योंकि अगर समझते तो जलाल के खुदावंद को मसलूब ना करते, बल्कि जैसा लिखा है वैसा ही हुआ कि जो चीजें ना आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना आदमी के दिल में आई, वो सब खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए तैयार कर दी। ये पुष्ट आपकी मोहब्बत में रद्द की गई है ताकि खुदा का सुखन पूरा हो सके। अब आप सोचें, आज का कायद क्या कर रहा है? वो कौन से कलाम के पहलू पर जो है ज्यादा जोर दे रहा है?
वो किस बात की ज्यादा अक्कासी कर रहा है। यीशु मसीह आया, लेकिन उसकी जिंदगी में सबसे बड़ा मकसद जो है बाप की मर्जी को पूरा करना और इंसान की निजात है। हमारी खिदमत का, हमारे इस सारे काम का, हमारे प्रोग्राम्स का जो हासिल है क्या है, हमारा मकसद जो है वो क्या है। आज का रहनुमा और आज का वो दावेदार जो कहता है कि मैं उसका पैरो और उसका बेटा हूं, उसका क्या हाल है। क्योंकि खुदावंद हमारी नेकी पर काम नहीं करता, उसकी बरकत हमारी नेकी पर मुयस्सर नहीं है, बल्कि वो कहता है जिस पर चाहूंगा रहम करूंगा और जिस पर चाहूंगा और उसको सजा दूंगा। क्योंकि वो कहता है मैं मुजरिम को हरगिज बरी नहीं करूंगा। वो अपने लोगों की रुसवाई का, अपने पैगंबर की रुसवाई का, अपने लोगों की रुसवाई का बदला लेता है। यिर्मयाह की किताब 51 बाब की 57 आयत में वो बाबल के बारे में कहता है मैं उसके उम्रा को मस्त कर दूंगा। वो देखते हुए नहीं देखेंगे, सुनते हुए नहीं सुनेंगे। ऐसे लोग आज भी आपको मिलेंगे। बिगड़ी हुई अकल, जितना मर्जी समझाते रहें आप उसको, जितना मर्जी कहते रहें, इजहारे उल्फत करें, उसकी फिक्रमंदी उसको दिखाएं, लेकिन अगर वो कीना परवर है, अगर वो खुदा के हजूर नामकबूल है, वो कभी वापस नहीं लौटेगा। इससे बेहतर है खुदावंद के कदमों में आए, उसके लिए पूछें। खुदावंद आपको बता सकता है कि वो कहां तक तुम्हारे साथ चलेगा। जिद्दी और ढीठ लोग आपको मिलेंगे। इनमें वही लोग थे जो उसको बादशाह बनाना चाहते थे। एक बार पहले भी वो कोशिश कर चुके हैं, जब 5000 को खाना खिलाया। एक बड़ा मौजज़ा था लोगों की नजर में, एक बड़ी बात हुई थी। लोगों ने कहा हम जिसका इंतजार कर रहे थे वो यही है, वो नबी जो दुनिया में आने वाला था यही है। और उसको बादशाह बनाने लगे। जब यीशु ने ये देखा कि ये तो जब मस्त हो गए हैं, पंजाबी में कहते हैं राज्य जाना, जब उसने देखा कि ये पेट भर चुके हैं, अब इनकी सोच किसी और के इख्तियार में है। शैतान जो है वो सबसे पहला काम जो है वो यही करता है इंसान के साथ, वो आसूदगी जताता है आपको, वो आपको मुतमईन कर देता है हर तरफ से, क्योंकि वो खुदा के नक्शे को बिगाड़ता है वक्त से पहले, उसको अयां कर देने से। खुदावंद यीशु मसीह बादशाह है, अर्ज़ व समा का बादशाह है, लेकिन ये वक्त उसकी बादशाही का नहीं, और वो उसको बादशाह बनाना चाहते हैं। खुदावंद उनको अकेला छोड़कर पहाड़ पर वापस चला गया। और जल्दी जल्दी मैं आपको खाका बता देना चाहता हूं। दूसरा किरदार जो है वो है अबलीस। उस जुलूस के अंदर अबलीस उस सारे काम को फेल करने के लिए भी काम कर रहा था, और इस्तेमाल वो भी इंसानों को कर रहा था। ये वही इंसान है जो होशना का नारा लगा रहे थे। अगले दिन वो डालियां छोड़कर उनके हाथ घोंसों में तब्दील हो गए। उन्होंने कहा इसे मसलूब कर, क्यों? इसने हमारी बात नहीं मानी, इसे मसलूब कर, ये हमारे ख्याल के मुताबिक नहीं निकला, इसे मसलूब कर, क्योंकि ये हमारे तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे पाया। वो चाहते थे ये दिन जो है बलवे का दिन हो जाए
और उनकी उम्मीदें उस वक्त पक्की हो गई जब खुदावंद यीशु मसीह ने हैकल को साफ किया। और तीसरा किरदार जो है वो है आम इंसान। आज का आम इंसान क्या कर रहा है, उसकी सोच क्या है। 3 लोग थे यहां पर उसके खिलाफ कत्ल की साजिश करने वाले। यहूदा को कहा उसको पकड़वा, उसको जरा हम थोड़ा पिटाई करेंगे, छोड़ देंगे। कलाम मुकद्दस में लिखा है फकीहों और फरीसियों में एक मीटिंग हुई और उन्होंने कहा उसको फरेब से पकड़े और फिर कत्ल कर दे। फरेब यही है, उसके किसी अपने को इस्तेमाल करें, कहे मारेंगे छोड़ देंगे। और ये बात यहूदा के बयानात से भी अया होती है। यहूदा ने उसको कत्ल करने के लिए नहीं पकड़वाया था, इसीलिए तो वो वापस आया। जब उसने देखा कि वो मुजरम ठहराया गया, उसको सजाए मौत हो गई, तो वो वापस आया। उसने कहा मैंने गुनाह किया कि एक बेकसूर को तुम्हारे हवाले किया और अब तुम उसे कत्ल करने का इरादा रखते हो। उन्होंने कहा भाई तू जान, तेरा काम जाने, हमने तो तुम्हें पैसे दे दिए इस बात के। और वो वहां पर पैसे फेंक कर चला गया। और एक उसके पीछे भीड़ थी जो मुख्तलिफ जराए से उससे फायदा उठा चुकी थी। क्या हम उससे फायदा लेने वाले लोग तो नहीं? जस्ट फायदा, सिर्फ फायदे पर हमारी निगाह जो है वो टिकी रहती है। और तीसरे थे उसको मानने वाले। देर नहीं और देर सही, और देर सही, कुछ ना कुछ होगा जरूर। ये 3 लोग उस भीड़ में थे। आम इंसान, आम इंसान। आज का आम इंसान किस लाइन में खड़ा है? आप अगर इन 3 जगहों को पहचानेंगे तो पाम संडे, ग्रीन संडे आपके लिए बरकतों का बायस और आपकी खिदमत और जिम्मेदारी को जानने का जरिया बन सकता है। लेकिन अगर आप सिर्फ नारे लगाते रहेंगे, सड़क पर जुलूस जा रहा है, वेले हैं, काम कोई नहीं, चलो इसके साथ से ही, तो फिर कुछ फायदा नहीं। आज अपने नारे की गहराई को मापिए। आज अपनी मसरूफियात को किसी के जिम्मे लगाइए कि वो कौन है जो आपको लेके चल रहा है। क्या खुदा आपको लेके चल रहा है ताकि अपना सुखन पूरा करे, या आप अपना फायदा ढूंढकर उसके पीछे चल रहे हैं ताकि उसके काम को वक्त से पहले अया करें? या आप आम इंसान हैं जो अपनी राहों का तयन करने के लिए खुदावंद के पीछे है। खुदावंद इस कलाम के सबब से मुझे और आप सबको बड़ी बरकतों से नवाजे। आइए दुआ करें। कदूसियत के मालिक इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदावंद मसीह यीशु में हमारे बाप, तू ही इज्जत, बुजुर्गी, हमद और स्ताइश के लायक खुदावंद है। ऐ खुदावंद, माबूदों में कौन है जो अपने तकद्दस की बस जलाली और अपनी मदा के सबब से रोब वाला और साहिब करामात है। ऐ खुदावंद यीशु मसीह के खून की बुनियाद पर मैं तेरे कदमों में हूं और तुझे सिजदा करता हूं। ऐ खुदावंद, आज की सारी बरकत के लिए खास कर खुदावंद वो जो आज तूने खुदावंद इस कलाम के सबब से हमें बख्शी, हमें ऐ खुदावंद अपनी जगह का तयन करने में ऐ खुदावंद आसानी हो गई है। ऐ खुदावंद, हम बहाल हो सकते हैं, हम अपने आप को परख सकते हैं, हम ऐ खुदावंद तेरे साथ चलने की चाह का इजहार कर सकते हैं। ऐ खुदावंद,
हमें कोई आर नहीं कि हम ऐ खुदावंद माफी के तलबगार हो, मुल्तजी हो, किसी की परवाह नहीं। अगर ऐ खुदावंद हमारी जगह ठीक नहीं, अगर ऐ खुदावंद हमारा मकाम ठीक नहीं, अगर ऐ खुदावंद हमारा नारा ठीक नहीं, अगर ऐ खुदावंद हमारी चाहत ठीक नहीं, तो ऐ खुदावंद हमें अपने साथ चलने, मुंसलिक रहने, कायम रहने और रफाकत रखने की तौफीक अता कर अपने नाम को जलाल दे। जितने लोगों ने ऐ खुदावंद हाजरीन में ऐ खुदावंद बैठकर इस कलाम को सुना है, बड़े से लेकर छोटे तक अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें खुदावंद। अपनी जिंदगी की परख अता करे खुदावंद, अपनी पहचान अता करे खुदावंद, ताकि खुदावंद तेरा बेटा इन जिंदगियों में इज्जत और जलाल पाए। जितने लोग हमारे साथ मुंसलिक हैं अब और ऐ खुदावंद आने वाले वक्तों में, वो ऐ खुदावंद सुनेंगे, देखेंगे। ऐ खुदावंद अपने नाम को जलाल देने के लिए उनकी अक्लों को ऐ खुदावंद खोल दे, ताकि ऐ खुदावंद वो पहचान सके, वो जान सके ऐ खुदावंद कि तूने उन्हें किस जगह पर रखा है। वो ऐ खुदावंद लौटे ऐ खुदावंद, बहाल हो ऐ खुदावंद, और तेरे साथ अबदी रफाकत में शामिल हो। अलग होते हैं, हमें से हर एक के साथ रहिए, मुकर्रर वक्त पर फिर मिलाइए। हमारा मिल बैठना आपके बेटे के जलाल का सबब हो। मसीह यीशु की खातिर ये चाहता हूं, आमीन। अब जो तुमको ठोकर खाने से बचा सकता है और अपने पुरजलाल हजूर में कमाल खुशी के साथ बेऐब करके खड़ा कर सकता है, उस खुदाए वाहिद का जो हमारा मुनजी है, जलाल और अजमत, सल्तनत और इख्तियार, जैसा खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से अज़ल से चलता आ रहा था, अब्दुल आबाद तमाम मुक़द्दसीन के साथ, हाजिर जमात के साथ और तमाम देखने और सुनने वालों के साथ अब्दुल आबाद होता रहे। आमीन। सबको सलाम। खुदावंद आप सबको बरकत दे।